بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ حضرات محترم، ہم لمحہ بلمحہ موت کے قریب جا رہے ہیں۔ کامیاب فرد وہی ہے جو اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزارتا ہے، اور پھر مرنا ہر ایک نے ہے۔ ہر چیز پر یاد رکھیے گا اختلاف ہے۔ لوگوں نے اللہ پر بھی اختلاف کیا، رسالت پر بھی اختلاف کیا، آخرت پر بھی اختلاف کیا، ہر چیز پر اختلاف ہے، لیکن تمام مذاہب کے تمام لوگوں کا ایک چیز پر اختلاف نہیں ہے، اور وہ ہے موت۔ ہم نے مرنا ہے، ہم نے رب کے حضور جانا ہے، پیش ہونا ہے۔ اب کامیاب فرد وہی ہوتا ہے جس کو دیکھ کر اللہ اور اس کا رسول خوش ہو جائے، راضی ہو جائے۔ اب مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ حضرت شاہ رکن عالم، ان کی دوستی تھی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، اور ان کا ایک دوسرے کے ساتھ یہ تہیہ تھا کہ بھی اگر جو بھی پہلے فوت ہوگا دوسرا اس کا جنازہ پڑھائے گا۔ اب ایسا ہوتا ہے کہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ اب اس دور میں نہ نیٹ سسٹم ہے، نہ موبائل ہے، نہ کوئی واٹس ایپ گروپ ہے، نہ فیس بک ہے، کوئی سورس نہیں ہے، لیکن اللہ والوں کے لیے کوئی چیز معنی نہیں رکھتی۔ جو اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں گزار دیتا ہے، جیسے اقبال نے کہا تھا نا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ تو جو وفا کر دیتا ہے ہر چیز پھر اسی کی بن جاتی ہے۔ تو حضرت شاہ رکن عالم کو پتہ چلا، آپ چلے ملتان سے دہلی کی طرف، آپ پہنچے، جنازہ تیار تھا، اس وقت پہنچے، آپ نے جنازہ پڑھایا، اور آپ جانتے ہیں جنازے کے بعد لوگ جنازے کی طرف فوراً لے کر چلتے ہیں۔ تو آپ بھی لوگوں کو کہا، لوگوں جب تک میں نہ آؤں دفنانا نہیں ہے، میں آ کر خود ہی اپنے ہاتھ سے اتاروں گا۔ تو جب قبر مبارک تیار ہو جاتی ہے، حضرت شاہ رکن عالم سے آتے ہیں اور پہلے ہی قبر میں اترتے ہیں، جیسے ہی اترے تو بے ہوش ہو گئے۔ اب لوگوں نے کہا کہ حضرت، ہوش میں آنے کے بعد لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ بتائیں کہ آپ بے ہوش کیوں ہوئے تھے؟ کیا قبر کی زندگی یاد آ گئی تھی؟ فرمایا نہیں لوگوں، تمہاری نگاہ یہاں پر تھی، لیکن میری نگاہ تو سرکار پر تھی۔ جب میں قبر میں اترا، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں اپنے اس پیارے محبوب بندے کا انتظار کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو پتہ یہ چلا زندگی وہی ہے جس زندگی کے آخر میں اللہ اور اس کا رسول اس سے راضی ہو جائے۔ تو لوگوں اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزاریں، اور جس قوم نے، جس مذہب کے پیروکاروں نے اپنے نبی کی سنتوں پر عمل کرنا چھوڑا ہے، اللہ نے ایسی قوموں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں کو اللہ نے زندہ رکھا ہے۔ اسی لیے تو کہا لوگوں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن، دوسری میری سنت۔ اب سنت چونکہ زندہ ہے، اور سنت پر عمل کرنے والا جو عمل کرے گا وہی کامیاب رہے گا۔ اسی لیے تو کہا وما آتاکم الرسول فخذوہ، اور جو کچھ تمہیں میرا رسول دے دے اسے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس کام سے منع کرے، روکے، تو پھر رک جاؤ۔ اب کسی کام کرنے کا حکم دے تو چونچرا نہ کرو، اگر مگر نہ کرو، کیوں اور کیسے کے چکر میں نہ پھنسو۔ جب پتہ چل جائے کہ محبوب نے کہہ دیا اور محبوب کا حکم ہے، تو پھر سر خم تسلیم کر کے اس عمل کو کرتے چلے جاؤ۔
याद करो उस वक्त को जब एक सहाबी रसूल अब्दुल्ला बिन उमर एक सहरा से गुज़रते हैं, और सहरा से गुज़रते हुए जब एक आप चट्टान के करीब से गुज़रते हैं, सवारी का रुख उसी चट्टान के करीब किया और अपने घुटने को चट्टान पे लगाया। किसी ने कहा क्या हो गया है, क्यों यहाँ पर अपने घुटने को लगा रहे हो? तो आपने फरमाया किसी की अदा को अदा कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था और यहाँ से गुज़रते हुए मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा था, आपने इसी चट्टान के करीब से अपने घुटने को मस किया था। आज उसी अदा को अदा कर रहा हूँ। ये है मोहब्बत, ये है इताअत कि रसूल का कोई अमल नज़र आ जाए, कोई भी बात नज़र आ जाए, कोई भी हुक्म नज़र आ जाए, चाहे करने के हवाले से हो चाहे रोकने के हवाले से हो, फिर मोमिन का काम यह है कि अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर अमल करता चला जाए। अब देखें, एक सहाबी रसूल हैं, सोने की अंगूठी पहनी हुई है, और आप सब जानते हैं कि सोना मर्द के लिए हराम है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते हैं सोने की अंगूठी है, आपने अंगूठी को उतारा और फेंक दिया और आप चले गए। जब चले गए ना, तो दूसरा जिसकी अंगूठी थी उसका दूसरा दोस्त कहता है यार अंगूठी को उठा ले और इसको जो है आप बेच लो। तो आपने फरमाया नहीं, जिस अंगूठी को रसूलुल्लाह ने फेंका है मैं उसे उठा नहीं सकता। तो ये है इताअत। इताअत ये है कि चू चरा ना करें, अगर मगर ना करें, क्यों और कैसे के चक्कर में ना फंसें। और जो इताअत कर लेता है फिर क्या मकाम पाता है? कुरान ये कहता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, क्या महबूब, ए वद्दुहा के चेहरे वाले, ए वल्लैल की जुल्फों वाले, कुल ए महबूब कह दे। किसे कह दे? कुल का सीगा जब भी इस्तेमाल होगा मोमिनों को कहने के लिए इस्तेमाल होगा कि ए महबूब अपने चाहने वालों से कह दे, अपने नाम पर मर मिटने वालों से कह दे, जो तेरे नाम का कलमा पढ़ते हैं, जो तेरी मोहब्बतों का दम भरते हैं, ए महबूब उन्हें कह दे। मालिक क्या कह दूँ? इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, अल्लाह से मोहब्बतों का दम भरते हो, फत्तबिऊनी, ए महबूब उसे कह दे कि तेरी इत्तबा करें। अब मोहब्बतों का दम किससे भरते हैं? अल्लाह से भरते हैं। और रब हुक्म क्या दे रहा है? ए महबूब इन्हें कह दे कि जो मुझसे मोहब्बतों का दावा करते हैं, मेरी मोहब्बतों का दम भरते हैं, फिर क्या करें? ए महबूब इन्हें कह दे फत्तबिऊनी, तेरी इत्तबा करें। अगर मोहब्बतों का दम भरते तेरी इत्तबा, जब तेरी इत्तबा करेंगे युहब्बिबकुमुल्लाह, मैं मालिक होकर, मैं खालिक होकर, मैं राज़िक होकर, मैं फिर खुद इनसे मोहब्बत करूँगा। अब देखिए, लोगों ने इस आयत पर समझे कि लोग दम भर रहे हैं रब की मोहब्बत का, और रब उस मोहब्बतों को मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए रब कहते हैं मेरे महबूब की इत्तबा कर लो। जब महबूब की इत्तबा कर लोगे तो फिर नतीजा क्या निकलेगा? महबूब की इत्तबा करने का नतीजा ये निकलेगा, मैं खालिक होकर मैं ऐसे शख्स से खुद मोहब्बत करूँगा। अब ज़रा देखें सहाबा कराम अलैहिमुर रिज़वान ने किस अंदाज से मोहब्बत की और किस अंदाज से फिर इत्तबा की है। आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, हम मोहब्बतों का दम भरते हैं, हम कहते हैं कि ग़ुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, लेकिन जब अमल करने की बारी आती है तो ज़ुबान से हम मौत का दावा करते हैं कि मौत को कबूल करने वाले हैं, लेकिन जब बारी आती है अमल की तो फिर हम अमल नहीं करते। कितनी बातें हैं जो अमल करने वाले हैं, उठना बैठना, चलना फिरना, सोना खाना पीना, ये सब का सब सुन्नत रसूल पर हो तो ज़िंदगी कामयाब है। और जो इत्तबा करने वाला है वो देखता है बैठना हो तो कैसे बैठना है, चलना हो तो कैसे चलना है, मेरे रसूल कैसे चला करते थे, कैसे बोला करते थे, कैसे बातें किया करते थे, कैसे खाते थे, कैसे पीते थे। जब ये सोचेंगे तो फिर आप अमल करते चले जाएंगे। देखें अज़ीज़ दोस्तों, हमने वाकई हर अमल करते हैं, हम उठते भी हैं, बैठते भी हैं, चलते भी हैं, फिरते भी हैं, बोलते भी हैं, यारें भी हैं, दोस्ती भी हैं, निभाना भी है, सब कुछ है, खाते भी हैं, पीते भी हैं,
लेकिन क्या ही अच्छा हो कि जब हमारा हर अमल, अगर खाने के लिए बैठे, खाना तो वैसे भी खाना है, आप सब ने खाना है, मैंने भी खाना है, लेकिन अगर सुन्नत के मुताबिक खा लें, अब उसका फ़ायदा क्या है? ज़रा आप देखें, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना, फरमाया एक वक्त ऐसा आएगा जब लोग मेरी सुन्नतों पर अमल करना छोड़ देंगे, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, किसी को किसी की परवाह नहीं होगी। उस दौर में मेरे आका ने फरमाया था कि जब ये दौर आ जाए, किसी को मेरी सुन्नत की परवाह ना हो रही हो और कोई भी शख्स मेरी एक सुन्नत को ज़िंदा करेगा। अब इसका सवाब सुने, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कोई भी शख्स मेरी एक सुन्नत को ज़िंदा करेगा, अमल करेगा, लोगों को दिखाएगा, लोगों को बताएगा और सुन्नत को ज़िंदा करेगा, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। अब गौर करें, किसी एक सुन्नत पर पानी पीना है भाई, पानी पीने की 6 सुन्नतें हैं, पानी तो वैसे भी पीना है। आज अफसोस होता है कि लोगों ने एक जिद्दत का नाम लिया, मगरबी तहजीब को उठाया। आजकल वो खड़े होकर पानी पहले पीते थे, अब तो चल फिर कर पीते हैं, बोतल पकड़ी हुई है, जा रही हैं और पीते जा रही हैं। कोई पूछे भी यार ये कौन सा तरीका है, तो कहेंगे ये जिद्दत है, ये नई तहजीब है, ये एक हमारा जो है रिवाज है, पढ़ता चला जा रहा है। तो ऐसा नहीं है, याद रखना, जो भी नबी की सुन्नत पर अमल करता है तो ज़िल्लत में नहीं आता, वो इज़्ज़त में आता है। लोग इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं। अब वो चल कर पानी पी रहा है, नबी की सुन्नत के ख़िलाफ़ काम कर रहा है। अगर वही शख्स पानी पीते हुए सीधे हाथ से पकड़े, पहली सुन्नत 100 शहीदों का सवाब, फिर पानी को देखे, दूसरी सुन्नत, फिर बैठ जाए, तीसरी सुन्नत, फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े, ये सुन्नत, 3 सांसों में पानी को पिए, ये सुन्नत, और आखिर में पढ़ने के बाद मालिक कैसी नेमत दी है, एंड पर आकर वो अल्लाह का शुक्र अदा करे। तो 6 सुन्नतें उसने अदा की। अब 6 सुन्नतें जब उसने ज़िंदा की हैं, रिज़ल्ट क्या निकलेगा? उसे 600 शहीदों का सवाब अता होगा। पानी तो आप वैसे भी पी रहे, खाना आप वैसे भी खा रहे। और ये भी याद रखिएगा, कोई भी फ़राइज़ हैं, जितने भी फ़राइज़ हैं, फ़राइज़ बाद में हैं लेकिन सुन्नतें पहले हैं। आप अंदाज़ा लगे, नमाज पढ़नी है, नमाज फ़र्ज़ है, लेकिन नमाज फ़र्ज़ कब होती है? जब बलूगत तक पहुँचते हैं तब फ़र्ज़ होती है, लेकिन सुन्नतें तो शुरू से होती हैं। बच्चा पैदा होता है, अब देखिए सुन्नतों पर अमल किया जा रहा है। सबसे पहले उसके जो है बालों को काटा जा रहा है, कान में अजान दी जा रही है, उसके जो है ख़तना किया जा रहा है। तो ये क्या है? ये सुन्नतें हैं। फ़राइज़ बाद में आ रहे हैं लेकिन सुन्नतें पहले। अब इससे ये मुराद नहीं है कि मैं फ़राइज़ के हवाले से हम कहें कि इसका मर्तबा नहीं कम है, इसका मर्तबा कम नहीं है। फ़राइज़ तब पूरे होंगे जब सुन्नतें अमल करेंगे। फ़राइज़ की कबूलियत की शर्त है सुन्नतों पर अमल करना। नमाज फ़र्ज़ है लेकिन वज़ू करना, फिर वज़ू की सुन्नतों पर अमल करना। तो ये बात समझ, बल्कि आप अंदाज़ा लगें, बच्चा जब पैदा होता है, पैदा होते ही रोता है। आपने यकीनन किसी न किसी बच्चे के कान में अजान दी होगी। और आप सब जानते हैं, बच्चा जब रोता है, हिकमत ये कहती है, डॉक्टर ये कहते हैं कि बच्चा खुराक मांग रहा है। लेकिन मेरे आका फरमाते हैं, खुराक तो सारी ज़िंदगी इसने खानी है, लेकिन जिस जगह से आया है, जिस आलम अरवाह से आया है, वहाँ पर मेरे नाम के डंके हैं, मेरी अज़मतों के डंके हैं। लोगों, अब वहाँ मेरे डंके, मेरी अज़मतें, मेरी रिफ़तें वो सुनकर आया है। अब जिस जगह पर आया है, रो रहा है, और जब आया रोता क्यों है, मेरे आका इसकी भी वज़ाहत करते हैं। शैतान ज़ोर से चंबा मारता है। एक नन्ही सी कली, छोटा सा बच्चा, मासूम सी जान, उसे शैतान चंबा मारता है। मेरे आका कहते हैं कि बच्चा रोता है, अब क्या करें?
डॉक्टर ये कहते हैं खुराक मांग रहा है, लेकिन मेरे आका कहते हैं नहीं नहीं, खुराक सारी ज़िंदगी खाएगा, अब खुराक नहीं, ये कुछ और मांग रहा है, और वो है रूहानी ग़िज़ा। और रूहानी ग़िज़ा क्या है? अज़ान की सूरत में। अज़ान देते हैं तो चुप हो जाता है। उधर भी जिस जगह से आया है उधर भी रसूलुल्लाह की अज़मत के डंके हैं, और जिस जगह पहुँचे हम उसे बता रहे हैं कि तू किसी और जगह पर पैदा नहीं हुआ, तो मुसलमान के घर में पैदा हुआ है, जहाँ पर ज़िक्र होगा तो अल्लाह और उसके रसूल का ज़िक्र होगा। हज़रत मोहतरम, जिन्होंने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर अमल किया है, रिज़ल्ट क्या निकलता है? हज़रत, अब ज़रा देखें कि हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है, इन्होंने सुना कि एक जमात है और वो जमात नेकोकारों की है, परहेज़गारों की है। आप इश्तियाक लेकर उनके पास मिलने के लिए जाते हैं। और हज़रत बायज़ीद बुस्तामी वो शख्सियत हैं कि जिनके बारे में आता है कि एक बार जा रहे थे, कुछ अफराद जो है, दो बंदे आपस में लड़ रहे थे, और लड़ने की वजह क्या थी? एक कहता था ये ज़मीन मेरी है, दूसरा कहता था ये ज़मीन मेरी है। वो अपने दलाइल देता, ये अपने दलाइल देता, और उसी दौरान बायज़ीद बुस्तामी उस जगह से गुज़रते हैं। दोनों ने जब देखा ना नूरानी चेहरे वाला है, तो फ़ैसला क्या, इन्हीं से फ़ैसला कराते हैं। दोनों मुत्तफ़िक होते हैं, जाते हैं, बाबा जी फ़ैसला करें। मैं कहता हूँ मेरी ये ज़मीन मेरी है, इसकी दलील ये है। दूसरा कहता है ये ज़मीन मेरी है, इसकी दलील ये है। लेकिन जो औलिया अल्लाह होते हैं ना, उनकी निगाह किसी और जगह पर होती है। दुनियादार की निगाह यहाँ पर होती है, लेकिन अल्लाह वाले की निगाह किसी और तरफ होती है। आप जलाल में आ जाते हैं, आपने देख लिया कि ये अपने मकसद से हट चुके हैं, इनकी नज़र किसी और तरफ है, और जबकि ये लम्हा ब लम्हा मौत के करीब जा रहे हैं। इससे ये नहीं पूछा जाएगा कि ये ज़मीन किसकी थी। आप जलाल की हालत में आकर ज़मीन को ठोकर मार कर कहते हैं, ऐ ज़मीन तू बता तू किसकी है, इसकी है या उसकी है। अब ज़मीन को रब ने ज़ुबान दे दी, ज़मीन बोलना शुरू करती है। मैंने बताया था ना कि की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं। जिसने रसूलुल्लाह से वफ़ा की है, रसूलुल्लाह की सुन्नतों पर अमल किया है, उसका उठना बैठना चलना फिरना सोना खाना, ये सारा का सारा अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में है, तो फिर ये जहाँ चीज़ है क्या, लोह कलम तेरे हैं। आप देखें, जब ठोकर ज़मीन पर मारते हैं, ज़मीन बोल पड़ती है और कहते हैं बायज़ीद बुस्तामी, ना मैं इसकी हूँ ना मैं उसकी हूँ, बल्कि ये दोनों मेरे हैं। हज़रत मोहतरम, अल्लाह वालों की निगाह कुछ और होती है। यही बायज़ीद बुस्तामी जब जाते हैं कि भाई परहेज़गारों से मिलना है, उनकी ज़ियारत करूँ, और जब गए ना, उनमें से आपने देखा कि एक शख्स जो है खाना काबा की तरफ मुंह करके थूक रहा है। आप उठे बगैर मिले, आपने फरमाया ये जमात कभी मुत्तकियों की नहीं हो सकती, ये परहेज़गारों की नहीं हो सकती। जो अपने मुंह को किबला की तरफ करके थूकता है, तो वो सुन्नतों पर क्या अमल करने वाला होगा। आप वापस पलट आते हैं। तो औलिया अल्लाह की निगाह कुछ और होती है। अब इसी तरीके से हज़रत शेख इब्न अरबी, महियुद्दीन इब्न अरबी, ये कहते थे, काश अल्लाह मुझे एक बेटी देता। किसी ने पूछा, ऐ इब्न अरबी, हर दुआ में कहते हो ऐ अल्लाह बेटी अता कर, आखिर क्यों कहते हो कि अल्लाह मुझे बेटी दे? तो आप कहते कि मैंने नबी की हर सुन्नत पर अमल किया है, काश मेरी बेटी होती, और जब वो जवान होती तो मैं अपनी बेटी की शादी करता, तो ये भी सुन्नत पूरी हो जाती कि भी जैसे मेरे आका ने अपनी बेटियों की शादी की है, तो ये अपनी बेटियों की शादी करना सुन्नत ठहरा हमारे लिए। तो काश मेरी बेटी होती, मैं बेटी की शादी करता, सुन्नत पूरी हो जाती। इसी तरीके से हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी के बारे में भी आता है। आप कहते थे, आपने दुआ करते थे, काश अल्लाह मुझे एक नवासा देता। क्यों कहते हो, नवासे की दुआ मांगते हो? तो आपने फरमाया कि मैंने भी सारी सुन्नतों पर अमल किया, अल्लाह मुझे नवासा देता, उसे फिर कभी कंधों पे बिठाता, कभी उठाता,
پیار کرتا تو یہ سنت پوری ہو جاتی۔ اور پھر آپ نے وصیت کی تھی اگر میرے مرنے کے بعد اللہ مجھے نواسہ عطا کرے، فرمایا لوگوں اس نواسے کو اٹھا کر میری قبر پر بٹھانا، شاید سنت پوری ہو جائے۔ یہ تھا یہ جو عمل کرنے والے۔ اور حضرت امام احمد بن حنبل کے بارے میں بھی آتا ہے، آپ ایک جگہ سے گزرے، ایک جگہ پہنچے، آپ نے بھی سنا کہ متقی لوگ ہیں، ملنے کے لیے گئے۔ جب وہ نہانے کے لیے جا رہے تھے تو سب کے سب اپنے سطر کی حفاظت نہیں کر رہے تھے، وہ نہانے کے لیے وہاں پر جا کر بغیر اپنے جسم کو ڈھانپے نہا رہے تھے۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل جب نہانے والی جگہ پر جاتے ہیں اپنے سطر کو ڈھانپ لیتے ہیں کہ رسول کی سنت ہے کہ اپنے آپ کو ڈھانپ کر نہایا کرو۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل نے سنت پر عمل کیا، اور آپ کہتے ہیں کہ رات کو جب سویا تو غیب سے آواز آئی، اے احمد بن حنبل ہم آپ سے راضی ہو چکے ہیں اور آپ کے سب گناہوں کو ہم نے معاف کر دیا ہے، اور جو آج تو نے ہمارے محبوب کی سنت کو زندہ کیا ہے اور آپ کو ہم لوگوں کا امام بناتے ہیں۔ ذرا آپ اندازہ کریں، جو نبی کی سنت کو زندہ کرتا ہے، دل میں محبت رسول رکھتا ہے، اطاعت کرتا ہے، اتباع کرتا ہے، چون چرا کے چکر میں نہیں پڑتا، پھر اللہ اسے یہ نعمتوں سے بھی نواز دیتا ہے۔ اور صحابہ کرام کی زندگی تو مسلسل اتباع میں بھری ہوئی تھی۔ تو دوستو اگر دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، میں نے شروع میں جیسے کہا کہ ہم لمحہ بلمحہ موت کے قریب جا رہی ہیں، زندگی وہی ہے، اور حقیقی زندگی میں کامیابی وہی ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول دیکھے تو خوش ہو جائے۔ اور خوش کب ہوگا؟ جب ہم محبوب کی سنتوں پر عمل کریں گے اور دعا کرتے ہیں کہ مالک کچھ رہے یا نہ رہے، کچھ ملے یا نہ ملے، تیرے محبوب کی سچی محبت ہمیشہ ہم سب کے دلوں میں رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔